નમસ્તે વિદ્યાર્થીઓ, ધોરણ 9 વિષય હિન્દીમાં આપણે છેલ્લે 10 નંબરની કૃતિ એટલે કે ભારત ગૌરવ એ આપણે પહોંચ્યા છીએ. અત્યાર સુધી આપણે ટોટલ 9 જેટલી કૃતિઓ એ પૂર્ણ કરેલ છે અને ત્યારબાદ જે આ 10મો પાઠ છે જે કાવ્યના સ્વરૂપમાં, દોહાના સ્વરૂપમાં તમને આપેલ છે, એ કાવ્ય 10 નંબરની કૃતિ એ આપણી કાવ્યની છે, તેની આપણે આજે ચર્ચા કરવાની છે. તો બીજી એક વાત કરી દઈએ તો તમારા જે સત્રાંત પરીક્ષાની, તો એમાં તમારે આ જે 10મો પાઠ છે એ નથી, બરાબર. અગાઉ તમને જે અભ્યાસક્રમ આપવામાં આવેલ છે, અસાઇનમેન્ટ આપવામાં આવેલ છે, તેમાંથી જ તમારે સવાલ કરવાના છે. અને બીજી વાત એ કે આ પાઠમાં આપણે, આ કાવ્યમાં આપણે કવિ પરિચય અને જે પછીનો પેરેગ્રાફ, જે આપણી અગાઉની જે સિસ્ટમ છે એ પ્રમાણે કરીશું. અને હોમવર્કની વાત કરીએ તો હોમવર્ક પણ એ તમને આજે નહીં આપવામાં આવે, કારણ કે તમારી પરીક્ષાઓ એ નજીકમાં આવી રહી છે, તો એની તૈયારી તમે વધારે પ્રમાણમાં કરો એટલા માટે. હવે આપણી 10મા નંબરની કૃતિ, જેનું ટાઇટલ છે ભારત ગૌરવ, અને તેના લેખક એટલે કે આપણા અહીંયા કવિ એ મૈથિલી શરણ ગુપ્ત, એ આપણા અહીંયા કવિ છે. તેનો જન્મ સન 1886 ઈસવીસનમાં થયો હતો અને નિધન એ સન 1964 ઈસવીસનની અંદર થયેલો છે. હવે એના આપણે પરિચયથી શરૂઆત કરીએ તો मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था. હવે એનો જન્મ એ ઝાંસી જિલ્લાના ચિરગાંવ નામના ગામમાં થયો હતો. बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी. હવે એ બાળપણથી જ એની કવિતાઓ લખવામાં એનો રસ હતો, એની रुचि હતી. उनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई. बराबर. એની જે શરૂઆતની રચનાઓ હતી, બરાબર, એ હિન્દીની પત્રિકા છે સરસ્વતી. બરાબર. સરસ્વતી એક હિન્દીના બહાર પાડવામાં આવતી એક પત્રિકા છે, તેની અંદર તેની શરૂઆતની રચનાઓ હતી, બરાબર, એ પ્રકાશિત થઈ હતી. महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने उनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया. बराबर. महावीर प्रसाद द्विवेदी હતા, તેના દ્વારા તેને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવેલું અને તેનું એક કવિ વ્યક્તિત્વનું જે પરિષ્કાર છે, બરાબર, એ તેણે આપ્યું. राम भक्ति के सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने उन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया. बराबर. એનો જે આખો પરિવારના સંસ્કારો હતા, બરાબર, એ અનુસાર એ રામ ભગવાનને વધારે માનતા હતા. રામની ભક્તિનું એના પરિવારમાં મહત્ત્વ હતું. તેને કારણે ભગવાન શ્રી રામને લગતા કાવ્યો લખવાનું એને પ્રોત્સાહન થયું. और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर उनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी. बराबर. અને જે તત્કાલીન રાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિઓ સે પ્રભાવિત હોકર, એ તે સમયની જે રાષ્ટ્રની પરિસ્થિતિ હતી તેનાથી પ્રભાવિત થઈને તેણે તેની કવિતાઓ છે એમાં રાષ્ટ્રીય ચેતના और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी. રાષ્ટ્રીય ચેતના અને સ્વદેશના ગૌરવની એને એક અવાજ એ સંભળાવા लागेलो. उसी कारण ये राष्ट्रकवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए. એ કારણથી જ તે રાષ્ટ્રકવિના સંબોધનથી પ્રસિદ્ધ થયા, તેથી તેને રાષ્ટ્રકવિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ભારત ભારતી, सांकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं.
આ બધી એની રચનાઓ, એના નામ તમને આપેલા છે કે ભારત ભારતી એ પણ એની રચના છે, સાંકેત, પંચવટી, યશોધરા, विष्णुप्रिया वगैरह। बराबर। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण उन्हें 1954 में पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया था। हवे जुओ, हिंदी साहित्य अने शिक्षणना क्षेत्रनी अंदर तेणे खूब ज अनुपम योगदान, खूब ज महत्वनुं योगदान आपेलुं छे। तेने कारणे 1954 अंदर तेने पद्म विभूषणनो एवोर्ड पण आपवामां आवेलो हतो। तेनाथी तेने सन्मानित करवामां आव्या हता तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया अने राज्यसभाना सदस्य तरीके पण तेने मूकवामां आव्या हता। तो आ तो आपणा जे कवि छे मैथिली शरण गुप्त एनो एक सामान्य परिचय। बराबर। अगाउना अपने पाठ में जोयेलुं ए ज प्रमाणे के पहलो पेरेग्राफ छे ए सामान्य रीते कविनो आपेलो होय, कवि परिचय आ दर्शावे छे। ज्यारे त्यार पछीनो बीजो पेरेग्राफ छे ए तमने जे काव्य छे ए शुं कहेवा मागे छे, बराबर, ए काव्यनो सारांश ए तमने आपवामां आवेलो छे। तो एमां आपेलुं छे, आपणे एने विगतवार समझीए। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है। हमणां आपणे ऊपर जोयेलुं कि भारत भारती ए तेनी रचना छे आपणा लेखकनी। बराबर। मैथिली शरण गुप्तनी आ एक रचना छे अने तेमांथी ए आ काव्य लेवामां आवेलुं छे, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। अने आ काव्यनी अंदर 3 बाबतो अहींया विगतवार रजू करवामां आवी छे। आ काव्यने 3 खंडोनी अंदर वहेंचवामां आवेलुं छे अने 3 खंड ए प्रथम खंड ए भारतनुं अतीत, भारतनो जे भूतकाळ छे ए दर्शावे छे अने बीजो खंड छे ए भारतनुं वर्तमान, वर्तमानमां भारत शुं छे ए दर्शावे छे और भविष्य एटले के त्रीजो जे खंड छे ए भारतनुं भविष्य ए चित्रित करे छे। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है। बराबर। अने गुप्त जी हता एणे भारतनुं जे अतीत छे एनुं गौरवशाली चित्र ए रजू करेलुं छे और उन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व से सिरमौर पद पर प्रतिस्थापित किया है। बराबर। एणे जे वर्णन करेलुं छे, गुप्तजी आपणा जे कवि छे तेणे भारतना अतीतनुं जे गौरवशाली चित्र प्रस्तुत कर्युं छे तेनी विशेषताओं छे एने आधारे विश्व के सिरमौर पद पर एने प्रतिष्ठापित करवामां आव्या छे। पछी आगळ जणावे छे कि इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव गान किया है। आ काव्य में कवि ए भारतीय सभ्यता अने भारतीय संस्कृतिना गौरवनुं एने गुंजन करेलुं छे, गान करेलुं छे। उसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। एने जे अपना आर्य समाज हतो, आपणो आर्यो छे एनुं जे महान जीवन छे, बराबर, एना आदर्शो छे तेनुं पण सरस मजानुं चित्रण ए अहींया रजू करवामां आवेलुं छे। तो आम ए जे प्रस्तुत काव्य छे एनी अंदर सरस मजानुं आखा आपणा भारतना गौरवनुं एक सरस मजानी वात करवामां आवी छे। काव्यने 3 खंडनी अंदर ए विभाजित करवामां आवेल छे। भारतनुं अतीत, भारतनुं वर्तमान अने भारतनुं भविष्य। आ 3 बाबतोने विगतवार एनुं चित्रण ए अहींया आपणा कवि मैथिली शरण गुप्तजी करे छे। गुप्तजीए भारतना अतीतने एवं सुंदर रीते, गौरवशाली रीते ए वर्णन करेलुं छे अने एना वर्तमान अने भविष्यनुं पण एवं सारुं एवुं वर्णन एणे अहींया करेलुं छे। तो हवे आपणे एना जे शब्दों छे काव्यना एक एक अंतरो एने आपणे विगतवार समझीए। हवे पेलो ज तमने जे खंड आपेलो छे, भाग आपेलो छे 4 लाइननो। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीलास्थल कहाँ,
फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। हवे पहली लाइन तमने घणुं बधुं कही जाय छे कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ? अहींया प्रश्न पूछेलो छे कि भूलोक का गौरव, आपणी जे धरती छे, भूमि छे, ए भूमिनुं गौरव, प्रकृति का पुण्य, बराबर, ज्यां प्रकृति ए भरपूर प्रमाणमां रहेली छे। लीला स्थल कहाँ? हवे लीला स्थल तमने स्वाध्यायमां आपेલું છે કે महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि, बराबर, ज्यां महान पुरुषोए एवा कार्यों करेला छे एनी वात करेली छे। महान पुरुषोनी क्रीड़ा भूमि, कर्मभूमि। गौरवनो अर्थ आपेलो छे सन्मान, प्रतिष्ठा। भूलोक एटले के संसार के दुनिया, बराबर। भूलोक का गौरव, आखी दुनिया के आखा संसार छे, बराबर, एनु गौरव, बराबर, ए कोण छे एवो अहींया प्रश्न पूछेलो छे। प्रकृति का पुण्य, ज्यां प्रकृति विशाळ प्रमाणमां रहेली छे। लीलास्थल कहाँ? हवे लीलास्थल एटले ज्यां एवा महान पुरुषोए पोताना कर्मो करेला छे, सारा कर्मो करेला छे, पराक्रमो करेला छे, बराबर। भारतना संदर्भमां वात करीए तो महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, शक्तिसिंहजी, आ बधा महान पुरुषो, गांधीजी, भगतसिंहजी वगैरे जे एना क्रीडाकांडो एटले के कर्मो करेला छे, बराबर। तो अहींया प्रश्न पूछेलो कि भाई भूलोकनुं गौरव शुं छे, प्रकृतिनुं क्यां पुण्य थयेलुं छे, लीलास्थल एटले के ज्यां महापुरुषोए क्रीडाओ करेली छे ए स्थळ कयुं छे? फैला मनोहर गिरि हिमालय, ज्यां मनोहर तमारुं मन हरी ले तेवो हिमालय पर्वत, और गंगाजल कहाँ? के ज्यां हिमालय छे अने गंगाजल, बराबर, गंगा नदीनुं जल गंगाजल छे, आ बधुं ज्यां छे, बराबर, त्यां ए भूलोकनुं गौरव छे, प्रकृति छे, पुण्य छे, लीलास्थल छे। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? तमाम देशोनी अंदर सौथी वधारे उत्कर्ष ए कया देशनो छे एवो पण प्रश्न पूछे छे। पछी पाछो एनो जवाब आपे छे, उसका की जो ऋषिभूमि है वह कौन? भारतवर्ष है, बराबर। एटले के ए देश के ज्यां जे देश ऋषिभूमि, बराबर, एटले के ऋषिमुनिओनी भूमिनो देश छे, बराबर, वह कौन? एटले के ए देश कयो छे? भारतवर्ष है, एटले के भारत छे। सरस मजानुं अहींया वर्णन ए भारत देशनुं करेलुं छे कि भूलोक एटले के समग्र विश्व के समग्र दुनियानुं गौरव ए भारत देश छे। भारत देशनी अंदर प्रकृति विशाळ छे अने भारतमां जे लीलास्थलनी उपमा आपी छे कि ज्यां महापुरुषोए पोताना कर्मकांडो, क्रियाओ करेली छे, अने हिमालय पर्वत ए एनी बाजुओमां फैलायेलो छे जे मन हरी ले एवा प्रकारनो। गंगाजलनी वात करी, गंगाजल छे। तमाम देशोनी अंदर सौथी वधारे उत्कर्ष ए भारत देशनो छे। उसका की जो ऋषिभूमि है, भारतनी धरतीने ऋषिभूमि एटले के ऋषि मुनिओनी भूमि तरीके अहींया ओळखावेल छे। आ बधुं भारतवर्षनी वात करी छे, बराबर, भारतवर्ष छे। तो आम तमने आ जे प्रथम 4 लाइननो जे खंड आपेलो छे, अंतरो आपेलो छे, एनी अंदर बहु सरस मजानुं भारत देशना गौरवनी गाथा गाई छे। सरस मजानुं वर्णन ए भारत देश अंगे करेलुं छे, बराबर। फरीवार थोड़ी चर्चा करीए तो भारतने भूलोकनुं गौरव कह्युं छे, प्रकृतिनुं पुण्य कहेवामां आवेल छे। भारत देशनी भूमिए लीलास्थल, ज्यां महापुरुषोए पराक्रमो करेला छे ए स्थळ कीधुं छे। हिमालय पर्वत ए पृथ्वी पर ज्यां देशमां फैलायेलो ए भारत देश छे। भारत देशमां गंगाजल छे। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? एटले के तमाम देशों करता सौथी वधारे उत्कर्ष ए भारत देशनो छे। उसका की जो ऋषिभूमि है, बराबर, भारतनी भूमिने ऋषिभूमि पण कहेवामां आवी छे अने आ बधा लक्षणों ए भारत देशना अहींया दर्शावेला छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आजनो लेक्चर ए आपणे अहींया सुधी राखीए। नेक्स्ट लेक्चरमां मळीशुं त्यारे आपणे आ काव्यमां आगळ वधीशुं।
અને લગભગ એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એ આ કાવ્ય આપણે પૂરું કરીશું. અને હોમવર્કમાં આપણે કંઈ આજે આપતા નથી. તમારે જે પરીક્ષા આવે છે એની તૈયારી કરવાની છે.